Hello and welcome to class 8th. So today we are going to revise the chapter 12, natural resources, land, soil and water. So basically the natural resources are divided into three parts, that is land, soil and water. So we are going to study first topic, that is land. Land is used for various purposes. Land like building homes, transportation. The land is divided into four parts, that is arable land, pasture land, forest and other uses. Next is land uses are determined by two factors, that is physical factors and human factors. Physical factors, it contains 4 points, that is relief, soil, climate and availability of water. Relief again is divided into three broad categories, that is plains, plateaus and mountains. Then soil is divided into two categories, that is fertile, infertile. And climate, we have two types of category, availability of water, the regions which have low and high, which are they are not suitable. Then human factors, we have population, economic development, technology, ownership of land. Again it have two categories, that is private land and community land. Next is conservation of land, because 29% all over the earth the land area is only left, so we have to plan very carefully and skillfully. So these are the things or methods through which we can conserve our land, and there are some other methods also. Now soil is also our prime resource, and all living things like plants, animals and human, they are directly or indirectly dependent on soil. Then we have soil profile. In this there are different horizons of soil, okay. Like O horizon, it contains humus. A horizon contains topsoil. B horizon contains subsoil. C horizon contains loose parent material, and D horizon, it is also called bedrock. Now you have to draw this diagram in your notebook also by writing the what this heading, okay. Color also. Next we have soil character and formation. Soil character and formation, so there are basically how many factors? There are 5 factors, okay. Like composition of parent rock, time of soil formation, topography, climate and living organism. Then we have types of soil in this chapter, okay. Alluvial soil, then it contains two types of soil, khaddar and bangar. Then you have drawn this completed this map also, political map of India, in your notebook, and you have to draw this key also which represent which type of soil, okay. Green color alluvial soil, yellow desert soil. In the same way you have to color the whole map and paste in your notebook. Next is red soil. Red soil, if we see, so it is developed by igneous and crystalline, okay, rocks. And then we have laterite soil, okay. Next is black soil, desert soil, mountain soil, saline sandy soil. Now there are a loss of soil which is caused by the process called erosion and exhaustion. Now what is erosion? Removal of top soil. जब top soil remove हो जाती है तो हम कह रहे हैं soil erosion. तो ये कैसे होती है? It is removed by the agents of erosion. What are the erosion? वो agents क्या है? जैसे कि soil of water and wind, ठीक है. इन दो मेथड से क्या हो रही है? soil eroded हो रही है, ठीक है. दूसरा है soil exhaustion. अगर हम soil exhaustion की बात करते हैं तो soil exhaust हो रही है किससे? with following the improper cultivation techniques, जैसे कि ड्राई फार्मिंग, मल्टी क्रॉपिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, डिफॉरेस्टेशन. तो यहाँ से सॉइल क्या हो जाती है? एग्जॉस्ट हो जाती है, उसके न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं? डेफिशिएंसी हो जाती है. तो कुछ प्रैक्टिसेस अगर हम फॉलो करते हैं तो इससे हम सॉइल को क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं, सॉइल को बचा सकते हैं. तो वो क्या प्रैक्टिस है? कॉन्टूर फार्मिंग हो गया, टेरेस फार्मिंग हो गया, स्ट्रिप फार्मिंग है. देन वी हैव फैलोइंग, मल्चिंग, क्रॉप रोटेशन, विंड ब्रेक्स और शेल्टर ब्रेक्स, इंटरक्रॉपिंग, ठीक है, एंड ड्रिप इरीगेशन, अफॉरेस्टेशन, ठीक है. देन वी हैव वाटर. वाटर जो बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है एंड इट इज़ नीडेड बाय प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है. क्लीनिंग, डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर, जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये सारे पर्पसेस में वाटर की क्या है? नीड है हमारे पास, ठीक है. फिर भी हमारे पास और क्या है? हमारे पास है और फ्रेश वाटर रिसोर्सेज. फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में हमारे पास क्या है? जैसे कि रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ग्राउंड वाटर है, ठीक है. फिर हमारे पास ह्यूमन जो है ह्यूमन नीड्स वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर, ठीक है. परसेंटेज इज ऑल्सो गिवन. फ्रेश वाटर हमारे पास 3% है और ओशन वाटर 97% है. बट वी कैनॉट लुक फॉर ओशन वाटर बिकॉज इट इज़ अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस, ठीक है.
Then we have two maps, fresh water resources in India, which is consisting on rivers, lakes and ground water. तो रिवर्स वाला मैप तो आप कॉपी में नहीं करेंगे, बट आपको ये वाला मैप नोटबुक में करना है, ठीक है, और शो करना है ये एरियाज़ जो 2020 में 21 मेजर सिटीज़ क्या होने जा रही है, रन आउट ऑफ वाटर होने जा रही है। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको नोटबुक उसमें दिया है गूगल क्लासरूम में, यू कैन सी। तो इसमें से सिर्फ 8 मेजर सिटीज़ आप दिखाओगे और हेडिंग पुट करोगे क्राइसिस ऑफ ग्राउंड वाटर इंडिया। तो सिर्फ लोकेशन दिखानी, नो नीड टू कलर इट, ओके, डू इट वेरी नाइसली। और ये रिवर वाला मैप नहीं करना है, ओके ओके। द नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टी रिवर्स वैली प्रोजेक्ट। तो मल्टीपर्पज से जैसे समझ में आ रहा है कि मल्टीपर्पज़ होता है इसका यूज़, ठीक है, कंट्रोल फ्लड, हार्नेस द सरप्लस वाटर टू बी यूज इन टाइम्स ऑफ ड्रॉट के टाइम पर ये हार्नेस करता है। डैम्स हो गए, कैनाल्स में हमारे पास टू टाइप्स ऑफ कैनाल्स हैं, इंडेंटेशन कैनाल्स और पैरानील कैनाल्स। तो टैंक्स हैं, वेल्स एंड ट्यूब वेल्स हमारे पास, ठीक है। नाउ देयर इज़ अ नीड फॉर कंजर्वेशन वाटर को कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास, जैसे हम वाटर का ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, वाटर स्कार्सिटी हो रही है हमारे पास, ठीक है, क्वालिटेटिव डिक्लाइन, क्वालिटी गिर रही है वाटर की, ठीक है, क्योंकि हम वाटर को कंटामिनेट कर रहे हैं। अब वाटर को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, तो देयर आर सेवरल वेज, सीवेज ट्रीटमेंट है, रिसाइकलिंग वाटर है, ठीक है। फिर हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ को हमें ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए, ठीक है, पॉल्यूशन से हमें फाइट करने की ज़रूरत है, ठीक है, रेन वाटर को स्टोर करके, ग्राउंड वाटर को फिर इसको रिचार्ज करके, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम एक बहुत अच्छा स्टेप है हमारे पास, जिसके थ्रू ये डायग्राम आपको नोटबुक में बनाना है और कलर भी करना है, और ये सारी आपको लेबलिंग भी करनी है, ठीक है। डायग्राम है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ सस्टेनेबल वे टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर एक्विफर्स। और जोग्राफी इन डेप्थ में देख लेते हैं। जो इंदिरा गांधी कैनाल है, या उसे राजस्थान कैनाल भी कहते हैं, ये लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड है, ओके। और जो फर्स्ट डैम है आपका, जो 4000 BCE में ही बिल्ड किया गया था, कौन सी रिवर पर, रिवर नाइल पे। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू, कीप रिवाइजिंग।